Good morning. A very warm welcome to the entire MHD group of institutions of family. I am Simi. Today we are at the beginning of something special. Today we officially launch MHD Talks, where our podcast begin. Why podcast? Because we realized in the hustle of exams and academics, we often miss the deeper conversations. Today we are on this channel. This is a direct channel to the parents, to the students. To officially open this platform, I am joined by our Managing Director, Dr. Kuldeep Kaur Anand ma'am. Hello ma'am. Hi, thank you Simi. It's a great joy and pride to launching this MSD Talks podcast. With great hope and vision, we are launching MSD Talks. It is not a podcast, it is a promise that we are here to listen, we are here to share, we are here to care. Through this podcast, we will resolve many issues, we will talk on many topics. ये एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी परेशानियां, जो भी उलझने, जो भी क्वेश्चंस हमारे पेरेंट्स के पास रह जाते हैं, एक समाज में जिनका आंसर मिलना जरूरी होता है, पर शायद हमें पता नहीं चलता कि इन चीज़ों को क्वेश्चन कैसे किया जाए। उस हर टॉपिक पर हम MSD टॉक्स के थ्रू बात करेंगे। आइए एक इस नई शुरुआत के साथ मदर्स डे पर हम इसको आरंभ करने जा रहे हैं। लेट्स जॉइन द हैंड्स वेयर एवर यू आर। आप कार में हैं, आप घर में हैं, आप किचन में हैं, जहाँ पर भी हमें लगता है कि हमारे सवालों को आवाज़ मिलनी चाहिए, हमारे सवालों का जवाब आना चाहिए, वहीं पर आपको MSD टॉक्स के नाम पर हम अवेलेबल होंगे। एक छोटी सी शुरुआत माता हर की देवी ग्रुप की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। Ma'am, we choose Mother's Day for our launch. Yeah. Let's be honest. Why do we need to talk about the struggle of motherhood today? See, Simi, we need to talk about the struggle of motherhood because whenever the Mother's Day comes, we see posters everywhere, we see advertisements everywhere. Everywhere there is a flood of on social media about the mothers. Yes, ma'am. But mothers का जो day to day struggle है, when a mother is waking up at 5 a.m. and mother is sleeping at 11 p.m., we don't value that. So I think it is very much important to discuss the real struggles of a mothers on the Mother's Day, not just to glamorize a one day and let's forget the 364 days of the mother's struggle. This is absolutely right. Ma'am, I think the working women's guilt is a silent epidemic. They think that they are missing out something about their child's life. Yeah, that's the hard reality of a working mother. We can say this. A working mother needs to think one thing very much important, that they are not leaving the child behind, they are leading the child. And when a mother is leading the child, definitely the child is looked at you. The child is actually observing you very silently. So working mothers always carry the guilt. मुझे लगता है कि वो गिल्ट मदर्स को नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चों के लिए एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट सो ईजी। एंड व्हेन अ चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग द स्ट्रगल ऑफ अ मदर, a child is learning how to handle the struggles, how to face the difficulties. So working mother is also a set example for the child. Whether we are missing something, कई बार हम अपनी मीटिंग्स के कारण बच्चों की PTMs छोड़ जाते हैं, वो एक बहुत गिल्ट होता है। कभी कभी हम अपनी कुछ शेड्यूल्स के कारण बच्चों के छोटे छोटे स्पोर्ट्स इवेंट्स छोड़ जाते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। एंड हमें अपने बच्चों को वो मेच्योरिटी पे लेके जाना है। व्हेन अ चाइल्ड इज़ लुकिंग, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि एक माँ कोशिश कर रही है, हर जगह पर कर रही है, तो मदर्स शुड नॉट फील अपोलोजाइजिंग एवरी टाइम। वी शुड appreciate ourselves that yes, we are fit in the picture, we are leading the kids, we are handling the homes, we are leading the society, we are leading the families. That's an appreciable step, I think. But yes, mothers should not carry that guilt inside. This is absolutely right. मुझे नहीं लगता कि मैम से बेहतर कोई और जान सकता है इस चीज़ को, बिकॉज मैम इज़ ऑल्सो वर्किंग एंड ये इतना बड़ा MHD ग्रुप को चला रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैम, लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक डिमांड जो पेरेंट्स मेंशन करते हैं कि वो अपने बच्चों का एक स्क्रीन टाइम, एकेडमिक्स और एक जनरेशन के बीच में जो गैप होता है, वो एक मदर कैसे हैंडल कर सकती है इन सब चीज़ों को? देखिए सिमी, यहाँ पे इफ़ आई टॉक अबाउट माई डे टू डे एक्सपीरियंस, यस मैम। सो मेरे टेबल पर रोज़ के तीन चार कंसर्न जैसे आते हैं, वेयर parents, even especially mothers, they feel
कि बच्चा फ़ोन ज़्यादा देख रहा है, बच्चा हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चा हमारी बात नहीं सुन पा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में मदर्स को ये लगता है कि दे आर हेल्पलेस। बट व्हाट आई सजेस्ट एज अ मदर, इस सिचुएशन में प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम कनेक्शन मेकिंग है। वी आर लूजिंग द कनेक्शन विद किड्स। हमें बच्चों के साथ उस कनेक्शन पे, उस बॉन्ड पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को साइड कर सकें। इसके लिए अगर मैं ये बात करूँ कि वी हैव टू गो थ्रू द सम बेसिक रूल्स जो हमें एज अ मदर आई थिंक फॉलो करने चाहिए। जस्ट लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट दैट इज़ द फर्स्ट इज़ द 15 मिनट रूल। मीन्स कि 15 मिनट हम बच्चे को बिना टेक्नोलॉजी के, बिना फ़ोन्स के, बिना टीवी के अपने साथ ऐसा दें कि जहाँ हम सिर्फ ये पूछ पाएँ कि हाउ वाज द डे टू डे। इट्स नॉट अबाउट एकेडमिक्स, इट्स नॉट अबाउट कि पढ़ाई कैसी रही, होमवर्क पूरा हुआ। इट इज़ लाइक हाउ द चाइल्ड इज़ फीलिंग। बच्चों को कभी कभी ये लगता है कि हम जब भी बात करते हैं हम पूछते हैं कि एकेडमिक्स से क्या बना, होमवर्क क्या बना, क्लास वर्क में क्या हुआ, स्पोर्ट्स पीरियड में क्या हुआ, कि इट इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटीज़। व्हेन वी टॉक एज अ पेरेंट इट इज़ नॉट अबाउट द चाइल्ड। सो 15 मिनट हमें बच्चों के साथ एक प्योर आई कॉन्टैक्ट चाहिए जहाँ पे हम आसपास की चीज़ों की नहीं, सिर्फ बच्चे के बारे में बात करें। आई थिंक दैट 15 मिनट रूल, गोल्डन रूल वर्क्स। बिल्कुल मैम, जैसे कि मैम ने बताया कि 15 मिनट रूल ये हर माँ को अपनाना चाहिए। मतलब अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। एटलीस्ट हम 24 घंटे बच्चे के साथ बात नहीं कर सकते, हमें इमोशनली उनको कनेक्ट करना होगा। एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे, 20 मिनट्स अ डे हमें उन्हें एक कनेक्शन बनाना होगा, इमोशनली उन्हें अपने साथ जोड़ना होगा। रादर देन एकेडमिक्स को पूछने के अलावा उनके दिन के बारे में पूछा जाए, और बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो बच्चा अपने मन में रखता है, तो उनके बारे में पूछा जाए। And if we talk about the reason for the support, yes, we are here as a support for the mothers. जहाँ भी जब भी मुझे कहीं भी लगता है क्योंकि मदर स्ट्रगल कर रही है तो अपनी तरफ से मैं हर उस मदर को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर कहीं ना कहीं कोई छूट रहा है तो वी इनवाइट द मदर्स दैट वी आर अवेलेबल फॉर यू, टू गाइड you, to consult you, to understand your problems. So MHD as a group, as a leader, I am always available for all the mothers wherever they are struggling in their own lives. बिल्कुल मैम. Now ma'am, let's talk about our stay-at-home mothers and their struggle with the modern learning gaps. जैसे कुछ मदर्स को लगता है कि वो अब बच्चों को हेल्प नहीं कर सकते, जैसे कि उनकी अब लिटरेरी जो लेवल है वो बहुत पीछे छूट चुका है, जैसे टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो उनका जो करिकुलम है, सिलेबस है बच्चों का, वो बहुत चेंज हो चुका है। जैसे उन्होंने पहले पढ़ाई की थी वो आजकल ऐसा नहीं होता, तो उनके बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक रियल स्ट्रगल है मदरहुड का। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, एक मदर का टेक्निकली अवेलेबल होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हमें उनका इमोशनली अवेलेबल होना ज़रूरी है। सो डियर मदर्स, दैट आई कैन सजेस्ट दिस फॉर कि दैट टेक्निकली हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इमोशनली वी शुड बी अवेलेबल फॉर आवर किड्स। इमोशनल गैप्स बच्चों को जब एक मदर स्ट्रगल करती है तो बच्चा उस स्ट्रेस को रियलाइज़ करता है, एंड वी आर हेयर टू मूव आउट द स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर मदर अपनी स्ट्रगल को जितना जितना कम करेंगी, जितना जितना अपनी लाइफ में इजी और हैप्पी रहने की कोशिश करेंगी, उतना उतना एक बच्चे की लाइफ में स्ट्रेस कम होता चला जाएगा। तो माँ को सिर्फ इमोशनली अवेलेबल होना है। टेक्निकल अवेलेबिलिटीज़ के लिए स्कूल हैं, टीचर्स हैं, दे विल हैंडल द थिंग्स। Yes ma'am, this is absolutely right. So ma'am, it's about the shifting the load. Yeah, of course it's about the shifting the load. Let us carry the weight of the curriculum so the mothers can carry the weight, can enjoy the beauty of the childhood. Absolutely. Ma'am, if you could one gift to the mothers listening today, what it would be? See, the one gift I would like to give to the mothers today, that is a self-compassion. To the mother who forgot the school's color day, to the mother who forgets the school's fancy dress, बहुत से टाइम होते हैं जब बच्चे का कंपटीशन है, हम कहीं उलझे हैं, हम भूल गए, बच्चे का फैंसी ड्रेस भूल गए, कलर्स डे भूल गए, कोई एक्टिविटी के लिए हमें कुछ देना था, हम वो भूल गए। तो उन चीज़ों के लिए मुझे लगता है मदर शुड बी सेल्फ कंपैशनेट। हमें अपने आप को माफ़ करना आना चाहिए। वो गिल्ट जब मदर्स कैरी करती हैं, और वो कैरी करती ही रहती हैं, उनको लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये भी नहीं कर पाई, पर हम अपने बच्चे के लिए जो कर रहे हैं, हम जब तक उसके लिए थैंकफुलनेस में नहीं जाएंगे, उसके लिए जब हम ग्रेटफुलनेस में नहीं जाएंगे, तो सेल्फ कंपैशन होना,
दूसरों के लिए हम काइंड हो जाते हैं, पर हर एक मदर को पहले अपने लिए काइंड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम। Thank you ma'am for your time, your heart today. Thank you for this beautiful inauguration. And to the listener, you are not alone. We are in this together. We will see you in the next episode. Happy Mother's Day and happy learning.